अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए चलते हैं पहले सुर्खियों की तरफ। सरकारी दवाखानों में मरीजों को कोई परेशानी नहीं, वजीर सेहत के बयान पर मजलिसी फ्लोर लीडर का इजहार अफसोस। 15 निकाती प्रोग्राम के फंड्स को अक़लियतों के सब प्लान में तब्दील करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील में हायल रुकावटें, ओहदेदारों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। और मां बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मोहब्बत की शादी रचाने का इबरतनाक अंजाम, शौहर ने बीवी को जला दिया। और अब खबरों की तफसील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में शहर के सरकारी दवाखानों की बदतरीन हालत की कलई खोलकर रख दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से वज़ीर आज़म के 15 निकाती प्रोग्राम के फंड्स को अक़लियतों के सब प्लान में तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर फ़ाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि अवाम की बहबूद ही हुकूमत का मकसद है और सुनहरे तेलंगाना की तामीर तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान उस्मानिया दवाखाना और गांधी दवाखाने में मरीजों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक सवाल पर वज़ीर सेहत ने कहा कि किसी भी तरह की कोई मुश्किलात मरीजों को पेश नहीं आ रही हैं। वज़ीर सेहत के इस जवाब पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर सेहत का जवाब इंतहाई अफसोस की बात है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात में मौजूद असरी आलात के नाक़िस होने की खली खोल दी और कहा कि यहाँ तक कि वज़न जांचने की मशीन तक काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत को ऐवान में बातें करने के बजाय दवाखानों का दौरा करते हुए आलात और मुश्किलात का जायजा लें। दीगर सियासी जमातों के अरकान ने भी अकबर ओवैसी के इस्तदलाल की तायीद करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। Sir, it is so sad. Sir, I would like to bring to the notice of Honorable Minister Sahab, Usmania Hospital, Nephrology Department, HD machine is not working. HD machine Gamro 2 numbers not working. HD machine Fresenius 2 numbers not working. RO plant not working for dialysis patients. ABG machine not working. Pathology, sir, in pathology, auto stainer not working. Sakura Christot is not working. Binocular microscope 20 numbers, out of that 5 are not working. Centrifuge 2 numbers not working. Sir, microbiology department, analytic balance not working. Binocular microscope 7, out of that 2 are not working. I'm going departmental wise, sir. Sir, general surgery, Boyle's apparatus, general surgery, sir, Boyle's apparatus, such important, not working. Sir, in clinical pharmacology, weighing machine, sir, weighing machine, electronic weighing machine, SW300, not working. When all these are not working, how can the minister give such a reply, sir? Is it nice, sir? Is it proper? When they say when member says something, they say the member should apologize. He's misleading the house. He said lies. We won't let him speak. Now what is this? Is this a proper reply? Is this the seriousness? Is this right? This is so unfortunate, sir. Sir, and one more, sir, moreover, I would like to have a specific answer, sir. Sir, specific answer, sir. If Honorable Minister cannot note it down, I'll give him my question, sir. Question number 1. Total how many government hospitals in city and their bed strength? What is the sanction strength of doctors and other paramedical staff in these hospitals? Present working and vacant position. Kindly give that. What is estimated cost of Usmania Hospital new building? This year, how much amount has been sanctioned? Released till now. What is the government action plan on that?
Kindly give this. How many major equipment in this hospital are functioning and how many are not functioning? How many AMCs have been given in last 3 years for the maintenance of equipment in these hospitals? How many biomedical engineers posts are sanctioned in Telangana Health, Medical, Housing and Infrastructure Development Corporation, present, available and vacant? Kindly give this. Whether Telangana government has constituted, this is important, whether Telangana government has constituted separate THMIDC for taking up construction of buildings, procurement of equipment for government hospital and other hospital in the state. And the last question, without constituting, how will you know the staff position? If not, without constituting and without staff, how the allocation of 100 crores of rupees will be spent? And lastly, sir, in the budget speech, finance minister said 500 crores have been given for Osmania, Gandhi and these hospitals. Sir, when I see the budget document, it is not reflecting in that. It is not reflecting in that. From where are you giving the 500 crores? आसमान से उतर के आ रहे, कहां से दे रहे आप? Kindly वक्त निकालिए, यहाँ जबानी जमा खर्च मत करिए. And sir, kindly sir, my request to you, please tell the minister not to give political speech. Not to give political speech. Tell them to give specific answers, sir. Thank you, sir. बाद में वजीर सेहत टी राजैया ने जवाब देते हुए कहा कि हलफ लेने के फौरी बाद उन्होंने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया था. उसके अलावा तेलंगाना के तमाम सरकारी दवाखानों का भी दौरा कर चुके हैं और वहां के मसाइल से तफसीली वाकफियत हासिल करने के बाद ही बजट में फंड्स मख्तस किए गए हैं. उन्होंने बताया कि हैदराबाद का जहां तक ताल्लुक है, यहां के दवाखानों पर 552 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं. उसके जरिए असरी आलात और बुनियादी सहूलतें फराहम करना है. आरोग्यश्री को भी 60% तक सरकारी दवाखानों में अमल आवरी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं. हुकूमत के पास मखलूआ जायदादों की तफसीलात नहीं है. जैसे ही तफसीलात हासिल होंगी उस पर तक़र्रुरात किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अवामी तिबी मराकिज़ को भी मुस्तकम बनाया जा रहा है. हर मरीज को 5 दिन तक की दवा देने की हिदायत दी गई है और कहा कि अगर किसी को भी शिकायत है तो वो उनके साथ दवाखानों का दौरा करने के लिए तैयार हैं. इससे पहले सनती शोबे से मुताल्लिक सवाल पर वजीर IT KTR ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इसी असेंबली सेशन में नई सनती पॉलिसी का ऐलान करेगी जिसमें दलितों और कबायलों को सनती शोबे से जोड़ने के लिए इक़दाम शामिल रहेंगे. तेलुगु अकेडमीज में बेकायदगियों से मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट बोर्ड में मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं. चंद कॉरपोरेट इदारे मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी पैदा करने की साजिश की जा रही है. वक्फे सिफर के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर में नशा आवर अशिया के खुलेआम इस्तेमाल पर कहा कि खुलेआम इसकी फरोख्त हो रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अंबरपेट के कब्रिस्तान में अदालत की तरफ से हुक्म इल्तवा के नाम पर तदफीन की इजाज़त ना दिए जाने का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि तदफीन की इजाज़त तो नहीं दी जा रही है, लेकिन मुतसिल अराजी पर प्लॉटिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब अराजी पर अदालत का हुक्म इल्तवा है तो फिर वहां तामीर और प्लॉटिंग किस तरह अंजाम दी जा रही है. अहमद बलाला ने कुरमागुड़े की फ़कीर मल्ला की 200 एकड़ वक्फ अराजी का भी मसला उठाया. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि अंबरपेट मंडल के अंदर गुज़िश्ता में एक ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए अलाट की गई थी. वो तमाम सर्वे नंबर में जुमला कुल मिलाकर करीब 2 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से आधी ज़मीन करीब हाउसिंग को दी गई थी. उसके बाद उसमें से 2000 गज ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए अलाट की गई थी. आज मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है. अलाट होने के बावजूद भी तहसीलदार की जानिब से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पर तदफीन नहीं करने दिया जा रहा है. वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर स्टे है, जबकि सेम सर्वे नंबर के ऊपर, पूरे सर्वे नंबर के ऊपर स्टे है. बाजू के वही सर्वे नंबर के ऊपर बाजू की ज़मीन के ऊपर प्लाटिंग हो रही है, घरां बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तदफीन करने के लिए लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है. मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर गौर करें. और साथ ही साथ कुरमलगुड़ा फ़कीर मुल्ला के पास 200 एकड़ औकाफी जायदाद है स्पीकर साहब, जिसके ऊपर कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज करें. परसों हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली.
मैं आपके जरिए गुजारिश करूंगा हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, हमारे साथ चलें, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लेकर जाकर बताएंगे, ताकि मुसलमानों की तदफीन का मसला कब्रिस्तान की ये एकसुई हो सके। बहुत सारी जगहें हैं, कब्रिस्तान की खिल्लत है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो साथ चले, हम जमीनें बताएंगे ताकि वो लोग वो वहां पर तदफीन के लिए इजाजत दें और जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करें। शुक्रिया। जिस पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रिकॉर्ड के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे बलाला साहब जो बताए अंबरपेट में कब्रिस्तान की बात है, उस पर इंक्वायरी की जाएगी। और ये फ़कीर मुल्ला साहब पास जो 200 एकड़ की बात कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शन करने की बात कर रहे हैं, ज़रूर हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है वो ज़रूर इंक्वायरी करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सुनाए गए राजा और गविया वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों को इस वाक़े से जोड़ना मुनासिब नहीं है। राजेंद्र ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐवान में जो मसाइल उठाने आए हैं, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों ने उसे हल नहीं किया था, शायद इसलिए अकबर ओवैसी TRS हुकूमत का भी साबिक़ा हुकूमतों से तक़ाबुल कर रहे हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि किसी पर भी तनक़ीद से दिल को तकलीफ़ होती है, लेकिन वज़ीर आला KCR को कोई भी तनक़ीद दिमाग पर ज़रब देती है। राजेंद्र ने दावा किया कि यह हुकूमत सुनहरा तेलंगाना की तामीर तक चैन से नहीं बैठेगी। बाद में BJP, TDP, CPI और CPM ने हुकूमत से बहबूदी प्रोग्राम्स में तब्दीली से मुतालिक मुतालबात पेश किए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया है कि 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत मरकज़ से आने वाले 5,000 करोड़ रुपए से अक़लियतों के लिए सब प्लान तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में मुलाजमतों के मौक़ों से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए कैरियर गाइडेंस सेल कायम किया जाए। अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत 475 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी किए जाएँ। अकबर ओवैसी ने कहा कि तलबा फ़ीस बाज अदायगी मसले को लेकर काफ़ी परेशान है। हुकूमत कम से कम कॉलेजेस को फ़ीस की अदायगी का तयख़ुन दे ताकि तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। The minority scholarship for pre-matric and post-matric. Acceptance of form has also not been initiated. Up till now, only the amount which was received by the Government of India, for that applications were accepted, and that too has not yet been released. So I would request the government to please start accepting the applications form for the post-matric and pre-matric. And when will the government start this? One. The second, madam, I had made a request that on same lines as SC, ST and BC students, there are training centers where the students are trained for all competitive exams, civil services exams, and also for other exams, Group 1, Group 2. On the same lines, I have been requesting from quite a long time. And in the recent past few years back, coaching centers have been started, but they are not really effective. Kindly, I request the government to call the responsible people who are running this center in Hyderabad, where they are coaching the students, ask them what is the passing percentage, how many students have passed, because in this budget also crores of rupees have been allocated for that. And I request that in this training, for 10th class also, some special coaching should be organized, not only in Hyderabad, but try to start in some 3-4 district headquarters, like Nizamabad, Adilabad. This will bring in good name to the government, and also it will be very helpful for the minority students. This is one, madam. And the third thing, which I have been making a request to the government, is that, madam, government has been very kind-hearted, and they had announced 1,030 crores, and they had also come on record and said that, okay, this is not just allocation, this will be allotted, and this money would for sure be spent. Fine. For that, madam, in that, I would say that there is not much of awareness in Muslim community. So I have been making a request. It's a very good suggestion which I have made. I would request the government to please have a career guidance cell in Hyderabad. Like,
that cell retired officials of government from different departments can be given a special deputation in that career guidance cell, where these officers can guide the Muslim youth as to which profession they should go. They can guide them and say that these are banks examinations are coming, bank appointments are there, railway appointments are there, army jobs are coming, and in police also this is coming. They can help them, they can guide them, they can fill the form for them. Like in this शादी के लिए गरीब लड़कियों के लिए जो स्कीम जो लाई गई है मैडम, it is very good, I appreciate. But the problem is that the Muslim community, they are unable to fill the forms. So such career guidance cells, where they could not only guide for the career, they can also guide and tell to Muslims that, why are you seeking a job only by the state government? See, here this insurance company is coming up with jobs, you can apply there. The banks are coming up with jobs, you can apply there. The army is coming up with job, you can apply there. A multinational company here is coming up with job, you can apply with them. Why should everybody focus on government jobs? So such a career guidance cell will be very good. If this pilot program, which would be launched in Hyderabad, is successful, then we can move this career guidance cell in other districts also. So this, I had made a request, Honorable, I hope that Honorable Minister would look into this, and also skill development centers. We need to train them. Madam, we have a National Academy of Construction in High-Tech City. I went there, I was successful. I got one NAC center in Old City. It is very beautiful center. They train the students, they give lunch whenever in the training period. After completion, they give a toolkit and also an appointment. Why not we open such centers more in all district headquarters? ई राजेंद्र ने अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबात पर जवाब देते हुए कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर के मुतालबात वाजबी हैं, लेकिन चूंकि ऐवान में वज़ीर आला मौजूद नहीं है, इसलिए इस पर फौरी वादा नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आला इन मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेंगे। ई राजेंद्र ने अकबर ओवैसी के मुतालबे पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन को रकम जारी करने का तयख़ुन दिया। फीस बाज अदायगी के अलावा पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक का मसला भी जल्द से जल्द हल करने का तयख़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ अराजियात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर बिलखुसूस पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में हायल रुकावटों और दरपेश मसाइल के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक़िद किया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इजलास में शिरकत की। पुराने शहर में प्रोजेक्ट के काम और अलाइनमेंट के सिलसिले में अकबर ओवैसी ने ज़रूरी तजावीज़ पेश की। इस इजलास में कोठी और असम्बली के पास भी अराजी अलाइनमेंट के मसले पर बातचीत की गई। तेलंगाना तहरीक के दौरान ओयू तलबा पर लगाए गए मुजरिमाना मुकदमात बर्खास्त करने हुकूमत ने फैसला करते हुए अहकामात जारी कर दिए। ओयू में तहरीक के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ाआत के साथ 25 तलबा पर मुकदमात दर्ज किए थे, जिनको बर्खास्त करते हुए वज़ीर आला ने अहकाम जारी किए हैं। उनमें रुकन पार्लियामेंट बी सुमन भी शामिल है। टीआरएस के रुकन असम्बली जूपल्ली कृष्णा राव ने रेवंत रेड्डी पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए रेवंत रेड्डी निचली सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी आवाम को गुमराह करने के लिए बार बार डीएलएफ अराजी के मसले पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कीमती अराजी को फ़रोख्त करते हुए तेलुगु देशम दौर में इस रकम का आंध्रा में इस्तेमाल किया गया था। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा और रियाज की जानिब से 21 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एजाज़ में एक खैर मक़दमी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के सदर अहमदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने जलसे के मुंतज़िमीन और ममलिकत में मुक़ीम हैदराबादी तारिकीन वतन की मजलिस से वाबस्तगी को खिराज पेश किया। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल से शुरका को वाकिफ करवाया।
बज़्म इत्तेहाद जिद्दा और बज़्म इत्तेहाद रियाद के नुमाइंदों के अलावा हैदराबादी तारिकीन वतन की कसीर तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल समीरा नाज़नीन ने मीडिया को बताया कि उनके कॉलेज में हर महीने के आखिरी हफ्ते में इस प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी गियासुद्दीन के अलावा लेक्चरर्स और तलबा ने भी कॉलेज में सफाई के काम अंजाम दिए। हमारे तारीखी शहर की तारीखी इमारत चारमीनार की कशिश एक कम सिन लड़के को आंध्रा के प्रकाशम जिले से हैदराबाद खींच लाई। 10 साला लड़का कार्तिक रेलवे स्टेशन खैरताबाद पर रेलवे पुलिस को दस्तयाब हुआ, जिसके पास 64,800 रुपये मौजूद थे। पूछताछ पर 10 साला लड़के ने बताया कि वो चौथी जमात का तालिब इल्म है। उसे चारमीनार देखने का बड़ा शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने घर में मौजूद रकम अपने बैग में रख ली और कनगिरी नामी देहात से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। वो खैरताबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा और उसे तन्हा घूमते हुए देखकर रेलवे पुलिस ने रोका और पूछताछ की, जिस पर पता चला कि चारमीनार का शौक इस लड़के को तन्हा यहां खींच लाया है। पुलिस ने उसके बताए हुए इलाके की तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि वहाँ एक लड़के की गुमशुदगी की इत्तला भी दर्ज है, जिसके साथ में 65,000 रुपये भी मौजूद हैं। उसके वालिदैन से रब्त किया गया, जो कार्तिक को लेने के लिए शहर पहुंच रहे हैं। श्रीनिवास नगर कॉलोनी वाक़े रामचंद्रपुरम में मकान के बाहर पार्क की हुई 2 मोटरसाइकिलों को जला दिया गया है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इससे पहले भी इलाके में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मौसर पुलिस पेट्रोलिंग न होने की वजह से शरपसंदों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पटनचेरू पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी रचाना और अंधी मोहब्बत पर भरोसा करना किस कदर खतरनाक होता है, इसका सबूत माशरे में आए दिन मिलता रहता है। इसी तरह का एक वाक़या शकरगंज के इलाके में पेश आया, जहां शौहर ने बीवी को आग लगा दी। आवारा और बदकिरदार लड़कों के साथ मोहब्बत के फरेब में फंसकर वालिदैन और ख़ानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद की गई शादी का इबरतनाक अंजाम सामने आया है। 6 साल पहले फरहाना नामी लड़की को घर से भगाकर शादी कर लेने वाले शराबी शौहर ने उसे 2 मासूम बच्चियों की आंखों के सामने जिंदा जला दिया। 4 माह की हामिला फरहाना उस्मानिया दवाखाने में मौत और ज़ीस्त की कश्मकश में मुब्तला है। मजलूम लड़की की मां ने बताया कि उनके दामाद आज़म अंसारी ने मैके से रकम न लाने पर पीर की शब अपनी खाला के साथ मिलकर उसे जिंदा जलाया। उन्होंने बताया कि 6 साल पहले नाजायज़ तरीके से अंजाम पाई शादी के चंद माह बाद से ही आज़म ने उनकी लड़की को मारपीट करना शुरू कर दिया था। चूँकि फरहाना ने शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए वो खामोशी से शराबी शौहर का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही थी। आज़म जो है सो खाला से पैसे लिए थे, उनका नाम बेगम है। आके रोज़ाना लड़ी थी तो क्या बोले उन्होंने, आज़म फरहाना को बोलो फरहाना के भाइयों कने से ला के देते, नहीं लाए। मैंने बोले मैं नहीं ली, मैं नहीं लाती। ठीक है, तो उन्होंने हाथा पकड़े खाला, इन्होंने मुंह दबा दिए, गैस का तेल डाल के गाड़ी खींचे तो दोनों बच्चियां पलाने लगे। तो नीचे से लोग आए तक उन्हें भाग गया। मेरी बच्ची जली। बाजू वाले फोन करके ये बोले देखो तुम्हारी बच्ची जल गई, हम दवाखाने के लिए जा रहे हैं। यानी अपने गलत इक़दाम की सज़ा खुद भुगत रही थी और ज़ब्ते गम कर रही थी। लेकिन ज़ब्ते गम पर था तबीयत को घुमंड, 4 ही दिन में मगर घबरा गई। जुल्म सितम जब हद से बढ़ने लगा तो उसने घर वालों को खबर दे दी। बेचारे घर वाले भी मजबूरी की वजह से अपनी बेटी को वक्तन फ़वक्तन रुपया और अनाज वगैरह फराहम करने लगे। इस मौके का
नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज़म ने भारी रकम का मुतालबा शुरू कर दिया और मुतालबे की अदम तकमील पर उसका हाथ चलना भी शुरू हो गया था। मुतालबात बढ़ने लगे और जाहिर है कि हर मुतालबा पूरा तो नहीं किया जा सकता था। बिलाखिर गुस्से में आकर आज़म ने फरहाना पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी और फरार हो गया। जाए वाक़या पर मौजूद दोनों मासूम बच्चियों और मजलूमा फरहाना की दर्दनाक चीखें सुनकर पड़ोसियों ने आग बुझाई और उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। शालीबंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बेबस औरत को जलाकर फरार होने वाले आज़म को तलाश कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी दवाखानों में मरीजों को कोई परेशानी नहीं, वजीर सेहत के बयान पर मजलिसी फ्लोर लीडर का इजहार अफसोस। 15 निकाती प्रोग्राम के फंड्स को अक़लियतों के सब प्लान में तब्दील करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील में हायल रुकावटें, ओहदेदारों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। और मां बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मोहब्बत की शादी रचाने का इबरतनाक अंजाम, शौहर ने बीवी को जला दिया। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।